Welcome back, guys. Welcome to my channel. We are going to continue the sets, number, and function. This is the second video of it. I'm going to teach you the basics and hard level of sets, number, and function in this video. So bane rahiye. Today we are going to start with Venn diagrams. Okay, Venn diagrams. So in our last video we have discussed about the universal set, right? What is universal set? Which contain all possible objects under consideration. So it can be made like that. This is called universal set. Okay. The second thing we need to do is you must understand about the subsets and sets. You can check it out. Intersection. So what is intersection? For example, we have two sets X and Y. Okay, the all elements of X in and Y जो common elements, it can be represented by like this. So in this, X is such that X belongs to X and X belongs to Y. If we are going to represent in Venn diagram, how we can make it? We are going to make it like that. For example, this is universal set U, and this is your X, this is your Y. So this is X intersection Y. The third which we are going to discuss in this is empty set. Empty set which contain no elements. It can be represented by phi empty set. Okay, there is no element in. If there is only one element contained, it's known as singleton. Singleton means only one element, which contain one element in sets is known as this. Okay. Suppose there are two elements like that, A and D. So what is A intersection D? That is phi set. What is that? Phi. You got it or not? Because there is no common element in between A and D, that's why we call it empty sets. What about union? Union which we are going to discuss. Two sets हैं हमारे पास X and Y. If we have two sets X and Y, the set of elements in one or the other of the sets. So we have to consider both of them. Suppose W is equal to X union. Union can be written as symbol of U such that X is such that X belongs to capital X, or यहाँ पे हम क्या use करेंगे? Or, not and. X belongs to capital Y. For example, if I am writing X set है A, which contain 2, 4. दूसरा set है B, which contain 4, 6, which contain 4, 6. So what do you think? What will be the union? A union B will be 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा. Don't write same number again and again. It is a part of union. एक ही बार उसको लिखना है. You don't need to write it again and again. Okay. Now we are going to talk about relative difference. Relative difference. अभी तक बने होंगे आप मेरे साथ, आपको समझ में आया होगा यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, रिलेटिव डिफरेंस क्या है. सपोज आपके पास एक सेट है X एंड सेट इज एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है. सेट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स व्हिच कंटेन सम स्पेशल क्वालिटी. ओके, सो X एंड Y आपके पास सेट्स है. अगर हम इनका रिलेटिव डिफरेंस निकालना है तो X माइनस वाई इज द रिलेटिव डिफरेंस. ये वो सेट होगा जो X माइनस वाई इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसमें X that are not also in Y is the set of elements of X that are not in Y. For example, ये सेट कैसा होगा अगर हम इसको लिखते हैं X belongs to capital X and X does not belongs to
कैपिटल वाई, मतलब एक्स वो नंबर है जो कैपिटल एक्स से बिलोंग करता है, लेकिन वो नंबर नहीं है जो वाई से भी उसमें इंक्लूडेड है। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 है, इजी। दूसरा एलिमेंट है हमारे पास बी, इसमें एलिमेंट्स है 3 4 6 7। गॉट इट? अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो हमें b के जितने भी एलिमेंट्स है वो a में से माइनस कर देंगे। तो इसमें कॉमन कौन कौन सा है? एक तो 4 है, दोनों में आ रहा है, और एक 6 है, दोनों में आ रहा है। a माइनस बी क्या होगा? 2 a। तो जो एलिमेंट्स कॉमन थे, जो b में भी प्रेजेंट थे, जो एलिमेंट्स b में प्रेजेंट थे वो हमने उसमें से a में से रिमूव कर दिए, तो दैट विल गिव a माइनस बी। सेम आप b माइनस a निकाल के देखिए, b माइनस a क्या होगा? 3 7। हमने जो एलिमेंट्स a में प्रेजेंट थे, जो कॉमन थे, उनको माइनस कर दिया, सो दैट विल बी। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें यहाँ पर, तो ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये अगर a है और ये b है, तो ये इंटरसेक्शन पार्ट है जो बीच में बन रहा है इनका, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b। तो अगर मैं जो रेड से मार्क कर रहा हूँ, दैट विल बी a माइनस बी। a में से वो एलिमेंट माइनस कर दिया और ये हो जाएगा आपका b माइनस a। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। पूरा b है तो इसमें से इंटरसेक्शन पार्ट हटा दोगे तो b माइनस a बचेगा। दैट्स द सिंपल थ्योरी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड रिलेटिव डिफरेंस। गॉट इट? अगर यहाँ पर रिलेटिव डिफरेंस 0 है, a माइनस बी अगर 5 है, नल सेट है, इसका मतलब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं रहा होगा। दैट्स अ सिंपल थ्योरी। अगर दोनों में एम्प्टी सेट आ रहा है, एम्प्टी सेट कब आएगा? जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन वी विल गेट द नल सेट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसमें इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। सो यू कैन डू इट इन योर होमवर्क। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस लिखा देता हूं जो बहुत जरूरी है इसमें आगे बढ़ने के लिए। हमें नेसेसरी लिखिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। सफिशिएंट कंडीशंस, तो आपको लिखना है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। सपोज मैं यहां पर बात करता हूं, इफ द जीडीपी, इसकी बात कर रहे हैं हम, जीडीपी की बहुत सुना होगा आपने, ऑफ जर्मनी is twice as large than England, twice है then that of England, ऐसा लिख सकते हो आप, twice as that of England। यहाँ पे हम ज्यादा इंग्लिश को वो नहीं करेंगे, आपको मतलब समझ में आना चाहिए। then the GDP of England is less than that of GDP, then GDP of England is less than is, are you able to get it? less than GDP of Germany। ठीक है, GDP of Germany ऐसे लिख सकते हो। so what we are doing, ये जर्मनी लिखा है मैंने, what we are trying to prove here, अगर जर्मनी की जीडीपी डबल है इंग्लैंड से, तो इसका क्या ये मतलब निकल सकता है कि इंग्लैंड की जीडीपी हमेशा कम होगी जर्मनी की जीडीपी से। तो अगर ए एक ऐसा नंबर है या सेट है जो कि बताता है जीडीपी ऑफ इंग्लैंड या जीडीपी ऑफ जर्मनी is twice as large as जीडीपी ऑफ इंग्लैंड, अगर ये बता रहा है ए, तो बी क्या बता रहा होगा? बी ये बता रहा है कि द जीडीपी ऑफ इंग्लैंड इज लेस देन दैट ऑफ जर्मनी। जीडीपी ऑफ इंग्लैंड इज लेस देन दैट ऑफ जर्मनी। गॉट इट? तो ए और बी में क्या रिलेशन है भाई? वो बहुत सिंपल सी बात है, ए अगर ट्रू है तो बी को ट्रू होना ही पड़ेगा। अगर ए हमेशा ट्रू है
तो अगर इफ ए है देन बी यहां पर ट्रू है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए इंप्लाइज बी, ए इंप्लाइज बी। ए किसको इंप्लाई कर रहा है, बी को। वेनेवर जब भी ए ट्रू होगा तो बी ट्रू होगा। ए इंप्लाइज बी मतलब जब ए ट्रू होगा तो बी ट्रू होगा। ए इज ट्रू whenever A is true then B is true। A implies B का मतलब समझे क्या, A से पता लग रहा है कि अगर A सही है तो डेफिनेटली B सही होगा। A implies B। सफिशिएंट कंडीशन देखिए आप, सेकंड देखिए, इसमें सेकंड पार्ट में आपको समझाता हूं। A is sufficient condition for B। A is sufficient कंडीशन फॉर बी। बी के लिए सफिशिएंट कंडीशन किसका है, ए का। तो ए गारंटी कर रहा है यहाँ पर। सफिशिएंट कंडीशन मतलब है द ट्रूथ ऑफ ए। जो अगर द ट्रूथ ऑफ ए, द ट्रूथ ऑफ ए गारंटीज, the truth of A guarantees the truth of B। Guarantees the truth of B। You can write down the truth of A guarantees the truth of B। Sufficient condition है यहाँ पर। और नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, ये तो सफिशिएंट कंडीशन हो गई। नेसेसरी कंडीशंस क्या होगा, ए तभी होगा जब बी होना। ए ओनली इफ बी, इसको कहते हैं हम, यानी बी का होना जरूरी है। बी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ए। यानी हम क्या लिखेंगे, बी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ए। बी अगर ट्रू है तो ए का, इफ बी इज नॉट ट्रू देन ए इज नॉट ट्रू। इफ बी इज नॉट ट्रू ए इज नॉट ट्रू। तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गई। बी का जरूर ट्रू होना जरूरी है ए के लिए। अगर सपोज मैं एक्स डिनोट कर रहा हूं जीडीपी ऑफ इंग्लैंड को, और वाई डिनोट कर रहा हूं जीडीपी ऑफ जर्मनी को। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, जीडीपी ऑफ इंग्लैंड। वाई क्या डिनोट कर रहा है, जीडीपी ऑफ जर्मनी। तो दिस इंप्लाइज दैट A is such that 2x is equal to y। और यहाँ पे B क्या होगा, B ये बता रहा है x is always less than 2। तो A जो सेट है वो कैसा है, x और y such that 2x is equal to y। A वो सेट है जिसमें एक्स, क्योंकि जीडीपी इंग्लैंड की तो उसका डबल है हमेशा जीडीपी ऑफ जर्मनी। और बी यहाँ पे जो सेट होगा वो ये बता रहा है, बी क्या बता रहा है, एक्स इज ऑलवेज लेस देन वाई। द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट सेटिस्फाई द कंडीशन ए। ए यहाँ पे क्या है, द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट सेटिस्फाई द कंडीशन ए। और बी क्या होगा, बी को ऐसे लिख सकते हैं, B is such that, जैसा मैंने अभी लिखा था, x y such that x is always less than the set of all the objects that satisfy the condition B। जो भी ऑब्जेक्ट्स सेटिस्फाई कर रहे होंगे कंडीशन B को, B मतलब जीडीपी ऑफ जर्मनी, उन सब के लिए ट्रू होगा कि वो x is always less than y। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x is the, A is the subset of